بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص خاص رحم و کرم کرے اور ہماری تمام ترین مشکل پریشانیوں کو دور کر دیں، آمین۔ اور آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کتابوں والا عشق، اور اس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر، اور یہ اس کی ایپیسوڈ نمبر 1 ہے اور یہ بہت اچھا ناول ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تمہیں سیدھی طرح کہہ چکا ہوں کہ یہ ناممکن ہے۔ ہمارے خاندان میں آج تک دور دور تک کوئی بھی لڑکی غیروں میں سے نہیں آئی، اور تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہاری شادی ایک ایسے خاندان میں کر دوں جس کا حسب نسب کوئی نہیں؟ ہم لوگوں کو دیکھو، اونچی برادری، نام نسب، اگر تم 10 پشت پیچھے بھی جاؤ گے تب بھی اونچا خاندان کہلائے گا، اور میں ایک عام معمولی گھر کی لڑکی اپنے بیٹے سے بہا دوں؟ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اب مزید میرے پاس اس بات کو لے کر کوئی بحث نہیں ہے۔ ایک طویل جواب دے کر روز کی طرح وہ اٹھ گئے۔ بخت نے ماں کی جانب دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ وہ پچھلے 1 سال سے بیٹے کی بےتابی دیکھ رہی تھی۔ 1 سال پہلے اس نے شادی کی بات کی تھی۔ وہ سب کافی خوش ہوئے تھے کہ بخت شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے۔ یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہوئی، اور وجدان چودھری جو اپنے حسب و نسب کو لے کر عجیب وہمی سی طبیعت کے مالک تھے، ان کے سامنے اس کی دال پچھلے 1 سال سے گل نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتا تو ایک ہوا اٹھا سکتا تھا، وہ چاہتا اپنی من مرضی کر سکتا تھا، وہ اختیارات رکھتا تھا۔ اس کی محنت تھی اس لیدر فیکٹری کو اس وقت شہر کی سب سے نامی گرامی فیکٹری بنانے میں۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ کتنے ہی 1 سال سے باپ کی مخالف رہا ہو۔ وجدان سے بے حد محبت کرتا تھا، اور وجدان بھی اس پر جان لٹاتے تھے۔ اگر وہ ان کی زندگی سے یہ پچھلے 1 سال نکال دیا جاتا۔ بیٹے پر آئی لڑکی ہے، کیا علم کیسی ہو؟ میں جانتا ہوں امی، کافی نہیں ہے، وہ ذرا تلخی سے بولا۔ 2 لوگوں کی شادی صرف لڑکا اور لڑکی پر منحصر نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو خاندان جڑتے ہیں، تم جانتے ہو۔ یہ سب پھر کیوں الجھ رہے ہو بیٹا؟ تمہارے ڈیڈ کی پھپھو کی بیٹی دانین یاد ہے؟ وہ بچی آئی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے میلاد میں۔ اس کے بال دیکھے تھے تم نے؟ اس کی تہذیب، اس کا ادب سے شرمیلا انداز، میرا دل موہ لیا اس لڑکی نے تو۔ مجھے اسی وقت تمہارے لیے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ حد ہو گئی ہے امی، میں آپ سے اینا کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی دانین کو اٹھا لائی ہیں۔ جب نہیں کرنی میں نے کسی اور سے شادی تو آپ لوگ کیوں نہیں میری بات مان رہے؟ وہ آگ بگولا سا ہوا۔ جاؤ، تمہارے آفس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وجدان شاور لے کر نکلے تو اب بھی وہ اپنی ماں سے الجھ رہا تھا۔ ڈیڈ، میں کچھ برا نہ کر گزروں، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ تو وجدان نے اس کی جانب دیکھا اور ان کا ہاتھ اٹھا، کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر لگا تھا۔ عافیہ دل تھام گئی۔ وجدان یہ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے 2 4 گالیاں دی تھی اسے۔ مجھے دم کھائے گا، اس کی ہڈیوں پسلیوں سے الگ کر دوں گا، بچہ نہیں ہوں میں، وہ دھاڑا۔ یہاں تک کہ وجدان بھی خاموش رہ گئے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس کے گھر بارات نہیں جائے گی، وہ میرے نام پر اس گھر میں نہیں آئے گی تو میرا مرا منہ دیکھیں گے۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا اور باہر نکل گیا، جبکہ عافیہ منہ پر ہاتھ رکھتی روتی چلی گئی۔ تم نے دانین کی بات کی تھی مجھ سے، میں ساجدہ پھپھو سے بات کرتا ہوں، کوٹھے سے بندھے گا تو سدھر جائے گا۔ وہ اسے روتا دیکھ کر تحمل سے بولے، وہ آپ کا بیٹا ہے وجدان، وہ اپنی منوائے بنا نہیں رہے گا، کہہ کر وہ اٹھ گئیں۔ کر دو تم ماں بیٹا مجھے پاگل۔ غصے سے انہوں نے گھڑی اٹھا کر ہاتھ میں ڈالی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آج بھی وہ بہت گریسفل لگتے تھے، اور بخت ان سے کئی گنا زیادہ جوان اور حسین تھا۔ اونچا لمبا قد، کچھ باغی سا مزاج، اور اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک،
कौन लड़की इसे छोड़ सकती थी? ऐसी लड़कियों के भला कोई एक आशिक होते हैं, 70 आशिक बना रखे होते हैं। यहाँ ऊंचा खानदानी हस्ब नसब देखा और यहीं चिपक गई। गुस्से से वो ये सारी बातें सोच रहे थे कि दरवाजा हल्का सा नॉक हुआ। दस्तक देकर आने की आदत सिर्फ इस घर में एक ही लड़की में थी। ओए मेरा बच्चा, मेरी जान, वो कितनी बार कहा है बस तुम नॉक ना किया करो। और वो घामड़ आदमी इसे 1000 बार कह दिया नॉक करके अंदर दाखिल हुआ कर, लेकिन आशिकी के भूत से सारी तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो तलखी से बोले, जबकि हनैन खिलखिला दी और वजदान ने इसके शाने पर बाजू रखा रखा इसे खुद से करीब कर लिया। हनीन बाप के गले लग गई। लगता है बहुत खुश है मेरा बेटा, वो प्यार से बोले। डैड, आपको पता है पूरे कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन आई है मेरी एमडी कैट में। वो जोश से बोली तो वजदान भी बच्चों की तरह खुश हो गए। अरे वाकई, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ, वो बोले तो हनीन शर्मा सी गई। चलो, अब मेरा बेटा बताएगा मुझे इसे क्या लेना है। अपने डैड से गिफ्ट। वो अपना वॉलेट उठाते हुए बोले। हनीन कुछ चुप सी हो गई, जबकि वजदान ने बेटी का चेहरा देखा। इन्हें अपने दोनों ही बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी वो बक पर काफी खफा थे, ऐना की वजह से। डैड, वो मैं आपसे। मैं क्या हुआ, तुम ऐसे रुक क्यों गई? डैड, मेरे प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे एक ऑफर की है। इनका कॉलेज है। मेरी प्रोग्रेस इन्हें इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने मुझसे कहा कि इनके टीचर केमिस्ट्री के, जो कुछ महीने के लिए मुल्क से बाहर गए हैं, उन्होंने मुझे ऑफर की है। मजदान चंद लम्हे ठहर गए, जबकि हनीन ने खुद पर बाप की गिरफ्त ढीली होती देखी। वो खूबी जानती थी कि वो कभी नहीं मानेंगे। इनके यहाँ ये रिवाज था ही नहीं कि लड़कियां घर से बाहर नौकरी करें, मगर वो नौकरी तो नहीं कर रही थी, वो तो शौक पूरा कर रही थी। और वो एक आस से बाप को देखने लगी, जिसने इसके सर पर हाथ रखा, हल्का सा मुस्कुराया। इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे, ओके? जब उन्होंने इनकार करना होता था तो वो ऐसे ही टाल देते थे। हनीन की आंखों में उदासी भर गई, लेकिन हल्का सा मुस्कुराकर वो वजदान के साथ ही नीचे नाश्ते की टेबल पर आ गई। माला बाजी, जहान साहब ने कहा है इन्हें नाश्ता दे दें। सकीना ने आकर कहा तो माला ने जल्दी से मुड़कर देखा। अभी बाहर नाश्ता पूरा किया था और जहान का अभी वो बना रही थी। जी जी सकीना आपा, ये नाश्ता आप इन्हें दे दें। वो जल्दी जल्दी ट्रे में चीजें रखती बोली। अरे ना ना बाजी, जहान साहब ने आपका नाम लिया है तो नाश्ता आप ही देंगी इन्हें, वरना वो ट्रे मेरे मुंह पर मार देंगे। वो डरते डरते बोली। माला की अपनी जान निकल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इसे नाश्ता भी देना जरूरी था। बेचारा नचार ट्रे हाथ में लेकर बाहर निकलती कि नगीन आ गई। कहाँ जा रही हो? गुस्से से इसने माला को देखा। वो मैं जी जहान भाई के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी। छोड़ो ट्रे, छोड़ो। नगीन ने गुस्से से इसके हाथ से ट्रे खींची। जेहान से दूर रहा करो। आइंदा मुझे जेहान के पास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नगीन ने भड़क कर कहा तो माला पीछे हट गई। डांट तो सुबह सुबह पड़ ही गई थी, लेकिन जेहान से बच गई थी। शुक्र अदा करते किचन में दोबारा चली गई, जबकि नगीन ऊपर जेहान के कमरे में आ गई। जैसे ही इसने कमरे का दरवाजा खोला, जेहान के कमरे में से खुशबू की महकार सी उठ रही थी। वो मुस्कुरा कर अपने खूबरू बेटे के कमरे में दाखिल हुई और ट्रे टेबल पर रखी। जेहान ने आईने में अक्स देखा था। वो माला नहीं, इसकी माँ थी। इसने मजीद परफ्यूम अपने कॉलर के नीचे लगाकर बोतल बंद करके ड्रेसिंग पर रखी और बालों में ब्रश चलाकर मुड़ा। माला कहाँ है? वो काम कर रही है। मैं ले आई हूँ तुम्हारा नाश्ता, तुम नाश्ता कर लो और साथ से मालूम कर लेना कि वो अभी। इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि जेहान बेड पर बैठकर जरा झुंझुलाया हुआ सा बोला। माँ, मैंने माला से नाश्ता मांगा था, फिर आप क्यों लाई हैं?
बेटे, माँ लेकर आई है, तुम माला माला कर रहे हो। मैं माला माला नहीं कर रहा। जब मैंने कह दिया वो लाएगी तो इसे ही लाना था। आप ले जाइए, नाश्ता मुझे नहीं करना। वो कपलिंग्स लगाता बोला। वो अपना मोबाइल देखने लगा। नगीन ने गौर करके इसे देखा। तुम माला, ऐसा कुछ नहीं है। माला की हैसियत इस घर में मुलाजमा की है, राइट? और मुझे इस मुलाजमा के हाथ से नाश्ता चाहिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो बोला। और ना चाहते हुए भी नगीन ये सोचते हुए कि वो नाश्ते के बिना ना निकल जाए, अरे लेकर नीचे ट्रे लेकर नीचे आ गई माला। वो गुस्से से बोली। माला दूसरी ही आवाज में वो चिल्ला उठी, बहरी हो तुम? सुनाई नहीं देता तुम्हें? कब से बुला रही हूँ? नगीन का जलजला देख कर सकीना ने बेचारगी से माला को देखा। ममानी जान, मैं जवाब, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ जिहान को नाश्ता देकर आओ, और एक लम्हा भी रुकने की जरूरत नहीं है वहां। इसका हाथ पकड़कर सख्ती से कहकर वो वहां से चली गई। जबकि माला ट्रे की जानिब देखने लगी, इसने मुड़कर सकीना को देखा, जो जज्बा जो जज्ब-ज़ब होकर निगाह झुका गई और मरे मरे कदमों से माला को ऊपर बढ़ना पड़ा। वो चंद मिनटों का फासला 10-15 मिनट में तय करती ऊपर आई और दरवाजा नॉक करती कि जिहान ने दरवाजा खोल दिया। माला को दरवाजे पर देखकर इसने आंखें सुकेड़ी और पीछे हट गया। माला अंदर जाना नहीं चाहती थी। इसकी आंखें झुकी हुई थी, इसके गुलाबी होंठ हल्की हल्की सी कपकपाहट में थे, जबकि इसका चेहरा फीका पड़ रहा था। इसने अंदर जाकर टेबल पर ट्रे रखी और जल्दी से मुड़ी कि जिहान दरवाजा बंद कर गया। जहान भाई, सहमा हुआ लहजा था। जब मैंने सकीना से कहा था कि नाश्ता तुम लाओगी, तो तुम्हारी जगह अम्मा क्यों आई? सोफे पर बैठकर इसने कॉफी का मग उठाया, हाथ में लिया कॉफी का मग हाथ में उठा लिया। ममानी ने कहा था कि वो लेकर जाएंगी। वो निगाह उठाने से भी कासिर थी। और तुम मान गई? इसने कॉफी का घूंट भरा। ठंडी कॉफी एक तरफ उगल दी। माला ने इसके चेहरे को बड़े बुरे असरात से देखे, बड़े तासुरात से देखे और डर गई। अच्छा सॉरी, मैं इसको दोबारा पढ़ देती हूँ। माला ने इसके चेहरे के बुरे तासुरात देखे और डर गई। इसकी सांस अंदर को घुट गई। माला, वो अपनी जगह से उठा और जैसे बोला, माला को लगा वो चकरा कर गिर जाएगी। मैंने ठीक बनाई थी, वो ठंडी हो गई, मैं अभी ले आती हूँ दूसरी। नहीं मेरी जान, ऐसे कैसे? तुम जानती हो ना मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम गलती करती हो। इसने कॉफी का मग इसके हाथ में थमा दिया। जहान भाई, मैं मैं सच कह रही हूँ, मैंने अच्छी बनाई थी। इसके गाल पर खौफ के मारे आंसू गिरा। जैसे जहान ने गौर से देखा और गहरा सांस भर गया। ठीक है, अब क्या करोगी तुम? वो एक कदम दूर हुआ। मैं नई बना लाऊंगी, वो बोली तो जिहान ने सर हिलाया। ठीक है जाओ, वो पीछे हट कर बोला और माला लम्हों में गायब हो गई। जिहान के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई और सिमट गई। वो खुद को आखिरी नजर आईने में देख कर नीचे आ गया, जबकि माला दूर दौड़ कर किचन में आई। माला पाची, क्या हो गया है? एहतियात से, सकीना बोली तो वो नफी में सर हिला गई। जान भाई मारेंगे मुझे। क्या वो आपको मारते हैं? सकीना दिल थाम गई। न नहीं, मारा तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं मैं मारूंगा। मुझे कॉफी बनाने दो। सकीना मुझे तंग मत करो। वो जल्दी जल्दी कॉफी बनाने लगी। वो जल्दी जल्दी कॉफी बनाने लगी और कॉफी बनाकर ऊपर आ गई, लेकिन खाली कमरा मुंह चिढ़ा रहा था। जान भाई वॉशरूम के नजदीक आई, लेकिन कोई नहीं था। वो जैसी ही पलटी, हुमानी को देखकर डर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आग बगोला हुई। मैं जिहान भाई, उफ, जिहान जिहान जिहान, तुम्हारी जबान खींच लूंगी। जिहान का नाम लिया तो तुम इसे सिर्फ भाईजान कहोगी, आज से, समझी? वो इसका मुंह गुस्से से जकड़ कर बोली, जबकि माला ने सर हिलाया। इसे रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा। नगीन ने इसके हाथों से कॉफी का मग लिया
اور غصے سے اس کے ہاتھ پر گرا دیا۔ آ آ اچھا بس، انہوں نے ڈانٹا۔ نیچے آؤ، ریاض کو بوائل ایگ بنا کر دو، وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ اپنا ہاتھ دے کر بے ساختہ رو پڑی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے، کافی گرم تھی۔ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ اس گھر کا ایک ایک شخص اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی اور سستی سے نیچے آ گئی اور کچن میں جا کر اس نے چولہے پر انڈے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیے۔ دوپٹے سے آنسو صاف کر کے وہ چولہے کے آگے کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ شدت سے جل رہے تھے۔ 12 بجنے کو آئے تھے۔ اس نے ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈالا تھا، جبکہ باہر ٹیبل پر سب محو گفتگو تھے۔ وقت جلدی چلا گیا آج۔ جہان نے تایا جان کی طرف دیکھا۔ ہاں چلا گیا، سمجھاؤ اس سے۔ الٹا دماغ الٹے دماغ کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ تایا جان جہان بولا تو وجدان سمیت ریاض نے بھی اسے گھورا تو وہ زبان دبا گیا، جبکہ سارم بھی اجلت سے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ سارم بیٹھ کر ناشتہ کر لو، عافیہ نے کہا تو سارم نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، وقت کی کالز آ رہی ہیں، آج میٹنگ ہے، جلدی جانا ہے۔ اور تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں میٹنگ تم نے لینی ہے؟ سارم نے جہان کو گھورا تو وہ گردن ہلانے لگا۔ ناشتہ کیے بنا تو نہیں جاؤں گا، جائیں آپ لوگ۔ وہ شانے اچکا گیا۔ سارم، تم لڑکی دیکھ لیتے ایک بار، بھابھی میرے پاس وقت نہیں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ عافیہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس لڑکے کی یہی باتیں ہی ذرا جو کسی بات پر توجہ دے دے۔ بہت اچھا ہے میرا بھائی، اور ایک ان کا بیٹا ہے۔ وجدان نے عافیہ پر طنز کیا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ تایا جان، مذائقہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا چپ کرو، اپنی رائے کھولنے کے لیے حمایت کرو گے اس کی؟ ارے نہیں جناب، ہم گھر سے باہر نگاہ نہیں رکھتے، وہ بڑبڑایا، جبکہ مالا نے ریاض کے آگے انڈے رکھ دیے۔ مالا نے بھی یہ سنا تھا۔ وہ جلدی سے پلٹی۔ نگین نے بیٹے کے آگے کافی رکھی جسے جہان نے نہیں چھوا، جبکہ ریاض صاحب انڈے کھائے بنا اٹھ کر وجدان کے ساتھ چلے گئے۔ دیر نہ کرنا، تم نے پروجیکٹ دینا ہے۔ ہاں ہاں آ جاتا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا اور ٹیبل بجانے لگا۔ وجدان، ریاض اور سارم بھی چلے گئے تھے۔ وقت تو بہت پہلے ہی جا چکا تھا۔ جہان، ناشتہ کر لو۔ نگین نے بیٹے کی جانب دیکھا جس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت ضدی ہو گئے ہو تم، وہ سختی سے کہہ کر کچن میں آ گئی۔ اور تھوڑی دیر بعد مالا نے اس کے آگے کافی رکھی جسے اس نے اٹھا لیا اور ناشتہ کرنے لگا، جبکہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی اور سب زور زبردستی کر رہے تھے۔ کافی پی کر وہ اٹھا اور اپنے موبائل پر بات کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مالا نے دیکھا سب جا چکے تھے، صرف حنین بیٹھی تھی، موبائل یوز کرتے ہوئے ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بہت جلن تھی، بھوک تک اڑ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی حنین کے نزدیک آ گئی۔ حنین، نرمی سے پکارا تو حنین نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ بولی تو مالا کنفیوز سی اپنا ہاتھ دکھا گئی۔ سفید، بالکل بے داغ چمکتے رنگ پر سرخ نشان تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کافی گر گئی میرے ہاتھ پر۔ تم پلیز مجھے کچھ دے دو، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ بھر گیا۔ تو تم کام دیکھ کر کیوں نہیں کرتی؟ حنین نے کہا اور اٹھ کر کریم لے آئی۔ نہیں، یہ کام سے نہیں جلا، وہ بولی تو حنین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو پھر کیسے جلا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ پر کریم لگاتی بولی۔ وہ ممانی جان نے کافی پھینک دی تھی، وہ بولی تو حنین سر پکڑ گئی۔ تم پھر جان بھائی کے کمرے میں تھی؟ نہیں نہیں، میں تو نہیں جاتی، وہ ناشتہ ہی نہیں کرتے۔ میں کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتی حنین، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی، جبکہ حنین نے گہرا سانس بھرا۔ ایک کام کرو، تم جاؤ اپنے پوشن میں، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہاں نہ آنا، سب سے دور رہو، وہاں گرمی ہوتی ہے۔ وہ سر جھکا کر شرمندگی سے بولی۔ حنین نے کچھ سوچا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو جلدی سے آؤ، کہاں لے جا رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ بولنا مت اب،
वो इसे अपने कमरे में ले गई और ऐसी ऑन कर दिया, माला को लगा जन्नत में आ गई हो। इतनी खूबसूरत खुशबू थी इसके कमरे में। तुम रेस्ट करो यहाँ, कोई मुझे पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि तुम अपने पोर्शन में। वो अंकल की तबीयत खराब हो गई थी। वल्लाह, अब्बा की तबीयत की खराबी का झूठ तो मत बोलो। वो परेशानी से इसे देखने लगी। माला कभी कभी छोटे छोटे झूठ बोल लेते हैं, मैं झूठ नहीं बोलती, वो मुंह बनाकर बोली। तभी तुम्हारा ये हाल है। हनीन कहकर कमरे से निकल गई और वो दरवाजा लॉक करने को कहा तो इसने जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया। कितना पुरसुकून कमरा था इसका। अगर हनीन इसकी मदद न करती तो वो सारा दिन इन हाथों की अजियत बर्दाश्त करती रहती। झूठ बोलने से सब ठीक हो जाता है, इसने सोचा, लेकिन झूठ बोलने से सारा बुरा हो जाता है और अल्लाह भी खफा होते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो सोचकर अपने हाथों को देखने लगी। सारिम के ससुराल जाना है, माला से कह दो खाना बना देगी, हम लोग शाम तक आ जाएंगे। और ये जहान से कह दो जरा वो लोगों को ले जाएगा। अब ड्राइवर तो वजदान भाई ने शहर से बाहर भेज दिया है, ये भी नहीं देखते कि कितनी तंगी हो रही है। नगीन ने आफिया से कहा तो वो सर हिला गई। ठीक है। नगीन ने चौंक कर देखा, अपना सारिम कितना खूबरू जवान है और इस लड़की का एक बेटा भी है, वो भी 9 साल का। नगीन भी इसकी बात पर तजब बजब का शिकार थी। छोटी उम्र में शादी हुई थी इसकी। लड़की अच्छी है और वैसे भी वो बच्चा अपनी खाला के साथ रहता है। सारिम तो इन बातों पर तवज्जो नहीं देगा। अगर यहाँ इनकार कर देंगे तो कभी भी किसी और लड़की पर राजी नहीं होगा। देखा नहीं कितनी मेहनत करके हमने इससे लड़की पर रजामंदी दिलवाई है, लेकिन इसे खबर तो नहीं कि इसका 9 साल का बेटा है। अच्छा छोड़ो, वो इसकी भी तो उम्र देख, 30 साल का हो गया है। भतीजे इसकी उम्र को पहुंच रहे हैं और लड़का शादी को नहीं मान रहा। अच्छा चले, जैसे आपको ठीक लगता है, आफिया ने कहा। मालूम नहीं कि माला कहाँ मर गई है, नगीन बोली और बाहर निकलकर आवाजें देने लगी। हनीन जो अभी तैयार होकर आई थी फौरन बोली, अंकल साजिद की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, माला इनके पास है। एक तो इन बाप बेटी के ड्रामे नहीं खत्म होते, अब खाना कौन बनाएगा, आफिया भी बोली। आएगी, खुद ही बनाएगी, नगीन नफुसत से बोली। नहीं चची, साजिद अंकल को शायद वो अस्पताल ले जाए, बहुत बेचारे बीमार हैं, हनीन बोली तो नगीन ने दांत पीसे। सकीना, जी बाजी, खाना बना दो, खाना बना देना, हम घर आए तो खाना तैयार हो, उन्होंने कहा तो सकीना सर हिला गई और वो हनीन और आफिया सारिम के ससुराल चले गए। हनीन तैयार होकर निकली तो उसने दरवाजा दोबारा लॉक नहीं किया और वो बैठे बैठे से सो गई थी। हनीन के बेड पर काफी आरामदेह नींद आई थी, जबकि दूसरी तरफ जेहान इन खवातीन से निकलकर घर आ गया। ड्राइवर क्या गया, इन सब ने इसे ड्राइवर समझ लिया और वक्त ढीठ आदमी तो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। वो घर आया तो थोड़ी देर रेस्ट करने के तकरीबन घंटे बाद इसने जाना था इन सबको लेने। हनीन ने इससे कहा था कि वो इसके कमरे से मोबाइल भी उठा ले, जो वो भूल कर आई थी। इसने एक नज़र पूरे घर में माला को तलाशा और फिर नजरअंदाज करके हनीन के कमरे में आ गया। वहां माला को देखकर एक लम्हे के लिए इसकी आंखें फैली और इसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया, जबकि सकीना पीछे से इसके लिए जो पानी लाई थी वो गिलास पकड़ कर इधर उधर देखने लगी और सर झटक कर वो दोबारा किचन में चली गई। वो तेज चलते एसी और सुकून से सोती माला को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फौरन मोबाइल निकाला और एसी की वीडियो बनाने लगा। खांसी इसकी वीडियो बनाते, जैसे ही वो इसके चेहरे के नजदीक आया, इसके चेहरे को एक लम्हे के लिए देखा। इसके हसीन चेहरे की वीडियो इसके कैमरे में बन रही थी। माला को अपने इर्द गिर्द कोई महसूस हुआ तो वो एकदम आंखें खोल गई और जहान को अपने ऊपर देखकर चीख मारी और जहान दूर हो गया। मोबाइल बंद करके सीने पर बाजू बांध गया। जहान भाई, मेरा मतलब है भाईजान, आप यहाँ। भाईजान, जान भी
कहना है। और भाई भी, अम्मी को बताओ, वो अपनी आईब्रो चुकाकर बोला, नहीं नहीं प्लीज मोमानी खफा होंगी, तुम हम सबके जाने के बाद ये काम करती हो, इंटरेस्टिंग। वो एसी एसी की जानिब देखता बोला, नहीं, अनिल ने कहा था और तुम मान गई। मैं इसका दम निकल रहा था, इसकी आंखें भीग गई। खाना कौन बनाएगा? वो आईब्रो चुकाता इसके नजदीक हुआ। मेरे हाथ जल गए हैं। कैसे? इसने जबरदस्ती इसके हाथ देखे जिन पर निशान थे। काम से बचने के लिए खुद जलाए होंगे। नहीं। तो मुझे लगता है अम्मा को तुम्हारी ये वीडियो दिखानी पड़ेगी। इसने इसे मोबाइल दिखाया और माला को लगा इसके कदमों से जमीन खिसक गई हो। इसके चेहरे के उड़ते रंग जेहान को मजा दे गए। भाई शट अप, भाई होगा तुम्हारा बाप, जान कहोगी आज से तुम मुझे। नहीं। माला की आंखों से आंसू बहने लगे जबकि वो आंखें निकाल कर इसे देख रहा था। चलो ठीक है, अभी तुम्हारे हाथ जले हैं, फिर तुम मुकम्मल जलोगी, और जलने के बाद कितनी तकलीफ होती है माला। वो अफसोस से बोला और जाने लगा। तो कौन जलाएगा? अम्मा। नहीं। वो बाहर निकल गया सीटी बजाते हुए जबकि वो पीछे रोने लगी। वो जानता था वो रो रही होगी, लेकिन क्या कर सकते थे इस बेवकूफ लड़की के साथ। ये सब करके मजा आता था इसे। जहान माला के पास से निकलकर सारिम के ससुराल आ गया था, जहां इसने हनीन के मोबाइल मांगने पर इसके सर पर चपत लगाई। मैं भूल गया लाना, घर जाकर इस्तेमाल कर लेना। वो बोला तो हनीन ने मुंह बसोरा। दूसरी तरफ सारिम की मंगेतर मिराल जहान को ही देख रही थी। ये आपका बेटा है? मिराल की माँ के सवाल पर नगीन फख्र से सर हिला गई। जिहान ने सर उठाकर मिराल को देखा और फिर मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। ये सारिम के रिश्ते में भतीजे हैं। खैर, आप आइएगा हमारे घर, आप लोगों से और ख़ास कर मिराल से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नगीन और आफिया दोनों उठी और हनीन भी खड़ी हो गई। हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम ज़रूर आएंगे। जी बिल्कुल, वो मुस्कुरा कर बोले, और जहान शुक्र अदा करता हुआ वहां सबसे पहले उठ गया। वो गाड़ी में आ बैठा। कुछ देर बाद इसने इन तीनों को घर पर छोड़ा और बाहर से ही ऑफिस के लिए निकल गया। जबकि दूसरी तरफ वो लोग जब घर आए तो माला को किचन में देखकर मुतमईन हुए। यार माला, मैं तो परेशान थी, मालूम नहीं सकीना कैसे खाना बनाए। थैंक यू सो मच, तुम खाना बना रही हो। अच्छा, तुम्हारा हाथ कैसा है? मैंने देखा था तुम सो रही थी। हनीन, ये जिक्र मत करो प्लीज। वो डरी सहमी सी बोली। क्या हो गया माला? वो जिहान जिहान भाई ने देख लिया मुझे, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली है, वो कहते हैं मोमानी को दिखाएंगे। वो बेसाख्ता रो पड़ी। हाय माला, ये क्या किया तुमने? तुम्हें लॉक कर लेना चाहिए था। तुम्हें पता तो है खान भाई कितने अथेरे में अथेरे हैं। मजाल है किसी के काबू में आ जाए। अब तुम जरा इनके काम को इनकार करोगी तो वो तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। अनिल ने तो इसे मजीद डरा दिया। माला की हालत ऐसी थी अभी कदमों तले जान निकल जाएगी। ये क्या कर रही हो अनिल? तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूं। तुम सच कह रही हो? इसने आंसू साफ किए। हाँ। अनिल मुस्कुराई तो माला मुतमईन हो गई और खाना बनाने लगी। माला, मर गई हो? पानी वगैरह पूछने की तमीज नहीं तुम्हें? नगीन ने गुस्से से बोली। तो वो गिलास ले आई और इन तीनों को पानी दिया। जहान भाई के मोबाइल में ली है मैंने चाचू की मंगेतर की तस्वीर, वो आएंगे ना तो तुम्हें दिखाऊंगी। हनीन बोली जबकि माला हल्का सा मुस्कुराई। जाओ खाना बनाओ। क्या खड़ी खड़ी दांत निकाल रही हो? आफिया ने भी झड़का तो वो झिझक कर वहां से चली गई। कम बोला करो इससे, आफिया ने बेटी को टोका। अम्मी, क्या हो गया है? इतनी तो डरी सहमी रहती है माला। और भाई, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं इसको डांट नहीं सकती। बाकी आप लोगों को जो मर्जी देखो, कैसी खींची की तरह जबान चल रही है, कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी।
आफिया गुस्से से बोली तो नगीन ने हाथ दबा दिया। छोड़े, बच्ची है, आप बताएं, वक्त वाला मसला हल हुआ? क्या बताऊं नगीन, बाप से उलझा हुआ है। अब बताओ, जरा इस तरह शादियां होंगी? कभी नहीं मानेंगे वजदान, तुम्हें तो खबर है कितने उसूलों के पाबंद है। हाँ, ये तो फिक्र की बात है, नगीन अफसरदगी से बोली। वजदान कह रहे थे फूफू से बात करेंगे तो दानीन का रिश्ता करा देंगे। अच्छा है, दिमाग इधर इधर लगेगा इसका। अच्छी बात है, दानिन बड़ी प्यारी बच्ची है। तुमने जहान के लिए कोई सोची है? अरे नहीं, अभी नहीं। मैं अपनी जहान की शादी परियों जैसी लड़की से करूंगी भाभी। आज तक कोई जहान के मुकाबले की दिखी ही नहीं। इतना ऊंचा लंबा वो बरू है मेरा बेटा। और देखा था कैसे देख रही थी मिराल की माँ जहान को। अरे मिराल भी देख रही थी, मुझे तो हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा जब सारिम को देखेगी तो भी देखती रह जाएगी। माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए, हसन तो इन सबको अपने बापों से मिला है। आफिया हंसी तो नगीन भी सर हिलाकर हंस दी। बहुत ही भूख लग रही है, और ये काम चोर लड़की कोई काम वक्त पर नहीं करती। नगीन उठी और किचन में आ गई, जहाँ वो जल्दी जल्दी मुख्तलिफ चीजें बना रही थी। इसे आदत थी, वो अकेले ही सारा काम बिना नखरा किए कर लेती थी। कहाँ बना रही हो तुम? आफिया भी किचन में आ गई। क्या बना रही हो तुम? आफिया भी किचन में आ गई। मुमानी, पुलाव बनाया है, सब्जियों वाला। कल मामू जान ने जिक्र किया था तो इसीलिए। और छोटे गोश्त में कढ़ाई बनाई है, साथ कबाब है, एक चिकन का सालन बना लिया है। और वो छोटे मामू जान ने कहा था वो सब्जी खाएंगे तो सब्जी भी बना दी है। मीठे में ट्राइफल बनाया है, वो फ्रीज है। वो सारा मेन्यू बताकर कुछ मुतमईन सी हुई कि शुक्र था इन दोनों को कोई इख्तलाफ नहीं था, वरना फौरन डांट देती। तुमने जहान के लिए कुछ नहीं बनाया? नगीन ने उसे घूर कर देखा। वो मैं मुझे भाई, वो बेध्यानी में भूल गई। जब नगीन के घूरने पर वो संभली। भाई ने बताया नहीं था, आप बता दें, मैं बना दूंगी। वो सर झुकाए बोली। हाँ, रोस्ट बना दो, और थोड़ा भुना हुआ गोश्त बना देना, बकरे का भुना हुआ। तुम्हें पता है वो कैसा खाता है? वो इससे मजीद 2 डिशेस का कहकर दोनों बाहर निकल गईं, जबकि माला ने फ्रिज से चिकन निकाल लिया। माला बाजी, सकीना को बेसाख्ता इस पर तरस आया। वो मसरूफ सी बोली, आपने नाश्ता किया है? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो फीका सा हंसी। आप बैठे, मैं आपको दूध दे देती हूँ, सकीना ने कहा तो माला को वाकई महसूस हुआ इसे कुछ खाना चाहिए। वो चेयर पर बैठकर दुपट्टे से अपनी पेशानी पर से पसीना साफ करने लगी, और सकीना ने इसे दूध दिया तो एक ही सांस में पी गई। जल्दी से पी लें बाजी, हम। थैंक यू सकीना, वो पीकर बोली। जिस्म में जान सी आई थी। तो वो जहान के लिए खाना बनाने लगी। बहुत ही प्यारी है मिराल। मैं तो कहती हूँ कल ही वो हमसे मिलने आए, और रिश्ता फाइनल हो तो सीधा शादी की तारीख रखेंगे। बस इस वक्त सब घर में मौजूद थे। खाने से पहले वो सिटिंग रूम में थे और सबको दोनों बता रहे हैं। तुम बता रही थी मिराल कैसी है? बस ठीक है, वो सबको पसंद है तो फाइनल करो। सारिम ने अलबत्ता कुछ खास तवज्जो नहीं दी थी। सारिम भी तो कुछ बोले, लगता है लड्डू इतने फूट रहे हैं चाचू जबान से अदा नहीं कर पा रहे। खवातीन व हजरात, मुझसे ना पूछो, चट मंगनी पट ब्याह करो। जहान ने मोबाइल पर से सर उठाया और बोला तो सारिम ने इसे घूरा। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं पड़ी, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो खुद कर लो। अरे अभी मेरी कहाँ उम्र है इस शादी वादी की। वो सर झटक गया। क्यों, 28 साल के हो गए हो, कब करनी है तुमने शादी? सारिम ने सोफे पर बाजू फैला लिया। जब कोई अप्सरा आंखों में उतर आएगी, वो एक्शन मारता बोला, जबकि सब मुस्कुरा दिए। वजदान ने वक्त की तरफ देखा जो कि मोबाइल में लगा हुआ था। वक्त, वो जरा सख्ती से बोले। उसने सर उठाया। फैमिली बैठी है, तुम किससे बातों में लगे हुए हो? किसी से नहीं, बोलिए आप, वो संजीदगी से बोला। और तभी माला ने आकर सबको खाने का कह दिया, क्योंकि टेबल पर वो खाना लगा चुकी थी।
सब उठकर खाना खाने चले गए, जबकि जिहान सबसे एंड में उठा। माला भी जल्दी से निकलने लगी कि जिहान इसके कदम से कदम मिला गया। मुझे एक गाना याद आता है, तुम्हें देखकर, सुनोगी? उसने सिटिंग रूम के दरवाजा बड़े धड़ल्ले से बंद कर दिया। नहीं, ये दरवाजा बाहर सब, ये जो तुम मेरी बातों पर इनकार करती हो ना, मुझे मजीद गुस्सा दिलाती हो, और वो सख्त जहर लगती हो, और सख्त जहर लगती हो। चलो एक काम करते हैं, मैं अम्मा के पास वो वीडियो सेंड कर देता हूँ। इसने मोबाइल निकाला। नहीं 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 जिहान भाई, वो गुस्सा करेंगी, प्लीज ना करें। माला की जान निकली थी। वेरी गुड, तो गाना सुनोगी? वो सर झुकाए बोली, हाँ। तो वो उठा और ऐन इसके पास जा खड़ा हुआ। माला पीछे हटी, वो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, जबकि इसके चेहरे के फीके रंग जहान को मजा दे रहे थे। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, गवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। माला हक दक इसे देख रही थी, जबकि वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े खड़ा था। उससे शादी करोगी? वो गुनगुनाया नहीं था, संजीदगी से पूछा था। माला की रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट दौड़ गई। इसे लगा इसकी जबान में हिम्मत नहीं इसके इस सवाल के जवाब की। माला अचानक एक चिंगाड़ती हुई आवाज आई और धार से दरवाजा खुला। जहान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि इसकी माँ उचकी है, माँ आ चुकी है, जो इन दोनों को वहां खड़ा देखकर हैरान हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो खाने को दौड़ी। वो मैं नहीं, जियान भाई ने रोका। मैंने तो नहीं। क्या हो गया माला? तुमने ही तो कहा है कि जियान भाई मुझे चॉकलेट्स खानी है, वो सुकून से बोला। माला की पेशानी पसीने से तर हो गई। तुम्हारी इतनी जुर्रत? नगीन पागल सी होती हाथ बुलंद कर गई। अरे अम्मा क्या हो गया है? चिल करें, हमारे घर का फर्द है, कोई फरमाइश कर भी दी तो क्या हो गया? इसका मैं मुंह तोड़ दूंगी। ये बहुत तुम्हारे साथ फ्री होने लग गई है। नगीन का बस नहीं चल रहा था, इसके टुकड़े कर दे। अच्छा आप चलें, कुछ नहीं होता। वो माँ को जाने का बोल गया। माला की आंखों में आंसू आ गए। जो अब वक्त पर देना था ना, हल्का सा मुस्कुराकर जवाब वक्त पर देना था ना। हल्का सा मुस्कुराकर एक आंख दबाता वो इसे बता गया था कि इसने ये क्यों कहा, और माँ को पकड़कर वहां से चला गया। माला की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। खाने की टेबल पर जाने के बजाय अपने पोर्शन में आ गई। वो वहां आई तो इसके अब्बू चारपाई पर लेटे थे। आ गई हो माला, खाना लाई हो? माला इनके सवाल पर इनका बाजू थाम गई। अब्बू आपको भूख लगी थी, आप मुझे आवाज दे देते। वो भराए हुए लहजे में बोली। अरे पगली, इसमें रो देने की क्या बात है? मुझे लगा तू आएगी तो आते हुए खाना लाएगी, बस इसीलिए पूछ लिया। मैं लाती हूँ। वो उठी और जल्दी से दौड़ती हुई वहां से निकली और सीधा पिछले दरवाजे से किचन में चली गई। इसने ट्रे में खाना निकाला और ट्रे अभी वो लेकर जाती कि नगीन ने वो ट्रे पकड़ ली। अगर तुम अपने बाप के लिए की गिनती के चंद दाने भी खत्म करना चाहती हो तो जहान के इर्द गिर्द दिखाई मत देना मुझे। तुम्हारी इतनी मजाल, मेरे बेटे से फरमाइश करो। मानी जान, मैंने नहीं कुछ कहा, वो झूठ बोल रहे थे। वो रोते हुए बोली, तू झूठी है, तू पैदा ही हुई थी तब से झूठी है। बोल, तू झूठी है जल्दी। वो भड़की। मैं सच माला झूठी है, वो फूंकारी, जबकि माला हार मानते सर हिला गई और उन्होंने ट्रे छोड़ दी। दफा हो जाओ और अब यहाँ दिखाई नहीं देना। वो चली गई और माला ने जल्दी जल्दी आंसू साफ किए और ट्रे उठाकर वो अपने अब्बू के पास आ गई। बेध्यानी में वो बस एक ही बंदे का खाना लाई थी और इसे इतने लवाजमात खाने की इजाजत नहीं थी। आफिया मुमानी ने कहा था वो बस एक हांडी में से खाना निकाल लेगी, और वो अब्बू के लिए रोटी सालन लेकर आ गई, और खुद तो इसने बस दूध का गिलास लिया था। इसने अपने अब्बू को खाना खिलाया। इन्हें फालिश था, वो खुद नहीं खा सकते थे, और ट्रे रख दी और दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। एक नज़र इसने अपने माजी पर डालना चाही कि नाना के 3 बेटे और एक बेटी थी।
दो बेटे वजदान और रियाज बड़े थे, फिर कौसर इसकी माँ, और फिर सारिम जो अपने तीनों बहन भाइयों से काफी छोटा था। छोटे मामू की पैदाइश पर ही नानी का इंतकाल हो गया था, और नाना के इंतकाल की वजह से इसकी माँ थी कि नाना शहर के बहुत मुअज़्ज़िज़ और नामी गिरामी इंसान थे, और जब नामी गिरामी और मुअज़्ज़िज़ आदमियों की बेटी घर से भाग जाए, वो भी अपने पुराने मुलाजिम के साथ, तो इज्जत की खातिर इस बेटी को जहर देकर मारा जाना कोई मायूब नहीं। औसत 3 रातें और 3 दिन घर से गायब रही, और जब वो लौटी तो माँ बाप और भाइयों ने भी इसे कतई ताल्लुकी कर दी। शहर में ये हुआ, हवा गर्म होने लगी कि मुईन चौधरी की बेटी अपने मुलाजिम के साथ भाग गई। इनके नाम पर जितना कीचड़ उछल रहा था, इतने ही जनों इसके भाइयों को इतना ही जुनून इसके भाइयों को चढ़ रहा था। और जब इसकी प्रेगनेंसी की खबर भाइयों तक पहुंची तो गलाजत समझकर उन्होंने इसे साजिद के साथ निकाल दिया। साजिद के पास कुछ नहीं था सिवाय मुबीन खान की नौकरी करने के। वो दोनों मोहब्बत एक दूसरे से करते थे, बहुत शदीद, लेकिन मोहब्बत पेट नहीं भरती। और जबकि माला हुई तो इसके 2 साल बाद हालात इतने खराब हुए, साजिद को फालिज हो गया और कौसर मुबीन खान के पास आ गई माला को लेकर। उन्होंने पहले तो धुतकार दिया, नफरत की लहर थी इन सब के अंदर कौसर के लिए बेपनाह। उन्होंने इसे सर्वेंट क्वार्टर का पोषण देकर एहसान तो कर दिया, लेकिन साजिद की मोहताजी ने सब तबाह कर दिया। कौसर बाप के घर से खाना मांग कर लाती और खाती थी। माला 8 साल की हुई तो कौसर का इंतकाल हो गया, और जैसे ही कौसर का इंतकाल हुआ वैसे मुबीन चौधरी को हार्ट अटैक आया, वो भी इंतकाल कर गए। और इसी वजह से माला इस घर में सबकी नफरत का बाइस रही। इसकी दोनों मुमानियाँ इससे शदीद नफरत करती थी। मामू दोनों बड़े तो बात करना भी अपनी शान में गुस्ताखी समझते थे, जबकि छोटे मामू कभी कभी बोल लेते थे। बड़े मामू के 2 बच्चे थे, बख्त बख्त और हनीन। बख्त से हनीन काफी छोटी थी। बख्त ने कभी इससे बात नहीं की थी, लेकिन कभी तंग भी नहीं किया। हनीन बहुत अच्छी थी, वो इसका ख्याल रखती थी। जबकि दूसरे मामू रियाज, इनके 2 बेटे थे, जेहान आलम और साद। साद अपनी स्टडी के लिए बाहर चला गया था, और फिर वहीं जॉब स्टार्ट हो गई, तो वो यहाँ इतना नहीं आता था। साल में एक बार मिलने आ जाता। जब एक जहान आलम था, मालूम नहीं इसे माला से क्या बैर था। वो इसे हर वक्त तंग करना अपना फर्ज समझता था। इसको ब्लैकमेल करने और तंग करने के अलावा इसके पास जैसे कोई काम ही नहीं था। माला को घर भी में किसी से इतना खौफ नहीं आता था जितना जहान से महसूस होता था। अक्सर जब वो छोटी होती, वो इसे अंधेरे कमरे में बंद कर देता, सीढ़ियों से धक्का दे देता। शायद इसे भी इससे बेपनाह नफरत थी, और माला को भी इससे बहुत डर लगता था। जबकि साथ जब भी आता तो वो हनेन की तरह इससे अच्छे से ही बात करता, और आज जो इसने बात की थी वो लाजवाब हो गई। वो जहान से शादी, ये बात तो जिंदगी में कभी भी नहीं सोची इसने, इसकी इतनी मजाल हुई। और वो मजीद डर डर कर मरना भी तो नहीं चाहती थी। वक्त मेरा रिश्ता हो रहा है, आपको पता है बाबा को कितनी जल्दी है, कैसे रिश्ता हो जाएगा तो तुम्हारे बाप का सर फाड़ दूंगा। मेरे बाबा हैं, आप तमीज से भी बात कर सकते हैं। वो खफा खफा सी बोली। टोपी बाज वो चप्पड़ चिड़ा चिड़ा सा हो चुका था, वो चिड़चिड़ा सा हो चुका था। मैं करता हूँ डैड से बात, क्या वो मान जाएंगे? ऐना फिक्रमंदी से बोली, मैं मना लूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराया, जबकि ऐना ने सर हिलाया, और वक्त ने कॉल काट दी। इसने गहरा सांस भरा और मुड़ा। जिहान खड़ा था। वैसे तुम्हारे जैसा लोअर नहीं है कोई दुनिया में। एक लड़की से मोहब्बत करते हो, सीधा जाओ, उठा कर ले आओ। वो अंदर आया और इसके कमरे में रखा फ्रूट उठाकर खाने लगा। मैं कम नहीं हो जाएंगे तो डैड ही जाएंगे।
वक्त जिद्दी लहजे में बोला। वैसे दानीन भी अच्छी है, वो उसे छेड़ने को बोला। वक्त का मीटर ही घूम गया। तू कर ले शादी इससे। नहीं, मुझे लंबे बाल नहीं पसंद, वो कहका लगा उठा। यार कितना बड़ा कमीना है तू, कोई हल देने के बजाय बकवास किए जा रहा है। देखो मेरे भाई, वक्त के तख्त पर बैठे शहजादे, इस घर बाहर की लड़कियां अलाउड नहीं। तुम तुम इसे बाहर ही रख लो, इसने जबरदस्त मशवरा दिया था। तू उठ निकल यहाँ से। वो मुठियां भींच गया। अच्छा अच्छा, ठंडी बात शहजादे, कुछ सोचने दे। तो एक कमरे की दीवार में टक्कर मार और ऊपर से कूद जा और एक खत लिख जा, मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा बाप है। वक्त इसे जब्त से देख रहा था। ओके सॉरी ब्रो, क्या हो गया है? तू जाता या जान से बात करूं ताया? तू चाहता है कि मैं ताया जान से बात करूं? और तू जा और ताया जान से बात कर और कह दे अगर आप ना गए मैं इसे ले आऊंगा। लगता है अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। वक्त खड़ा हो गया। हाँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो भाई को। आई नो, आई नो दैट। यार तो मेरे साथ वक्त का मिसरा मुकम्मल नहीं हुआ था कि इसने अपनी बात मुकम्मल की। याद करने की जरूरत नहीं है, फारिग नहीं है जहान आलम जो दुनिया के रिश्ते कराता फिरे। कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि वक्त ने इसकी कमर पर कुशन मारा। इससे बड़ा कमीना घर में कोई भी नहीं था। वो बाहर निकला और वजदान के कमरे में आ गया। आपने क्या सोचा डैड? वही जो बता चुका हूँ। वो अखबार पढ़ रहे थे। दानिन की तस्वीर दिखाओ उसको, इन्होंने आफिया से कहा, जो दानिन की तस्वीर दिखाने लगी। वक्त बाप को ही देख रहा था। इसने एक गहरा सांस भरा। निकाह कर रहा हूँ मैं, आपने आना हो तो आ जाइएगा, कहकर वो बाहर निकल गया। वक्त वजदान धाड़े थे, जबकि वो सीधा नीचे उतर गया। जहान सुकून से सोफे पर लेटा इसे देख रहा था। सीता रे मेरे शेर, ने आवाज लगाई, जबकि पीछे ताया जान को देखकर एकदम सीधा हो गया। जाकर इसे रोको, अगर इसने ऐसी कोई हरकत की तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। ताया जान, अब आप टांगे तोड़ने का ही निजाम कर लें, क्योंकि वो तो काबू नहीं आएगा। वो संजीदगी से बोला, जबकि वजदान ने चप्पल निकाल ली। जहान तुरंत भागा बाहर। ये सब तुम्हारी तरबियत है, वो बीवी पर भड़के। अगर आप मान भी जाएंगे क्या हो जाएगा? एक ही बेटा है आपका, आफिया बोली तो उन्होंने घूर कर इसे देखा। क्या हो गया है भाई, क्यों चीख रहे हैं? सारिम भी अपने कमरे से निकल आया। हामड़ आदमी, गधा, बाप के मुंह को आ रहा है, वो चिल्ला रहे थे, जबकि सारिम ने गहरा सांस भरा और घर से निकल गया। इसने घर से बाहर देखा। वक्त और जहान इसे दूर ही नजर आ गए थे। वो भी इनके नजदीक आ गया। पैदल लड़की भगानी है तुमने? सारिम ने कहा तो जहान दिल खोल कर हंसा। इस पागल को यही समझा रहा हूँ, बेवकूफ, रक्शे में नहीं भगाते लड़की, गाड़ी में चलते हैं। सारिम भी हंस दिया। तुम दोनों हंस लो, मेरी जान पर बनी है वल्ला ये आशिकी। जहान दिल पर हाथ रख गया। बात ये है वक्त मियाँ, सीधी तरह घर चलो और भाई को कायल करो, हम करते हैं बात। सारिम चाचू, तुम्हारा भाई पत्थर से ज्यादा सख्त है। वक्त तिल मिलाकर बोला, अबे मान जाएंगे, तुम ऐसे ही फिक्र ले रहे हो, चलो घर। जहान ने भी कहा और दोनों इसे लेकर घर आ गए। मजदान सोफे पर ही बैठे थे। इसे देखकर इनका बस नहीं चला, कोई चीज जोर से इसके मुंह पर मार दे। आप कितना ही घूर लें, मेरी बीवी ऐना ही बनेगी, वक्त ने कहा, जबकि वजदान अपनी चप्पल निकाल ली। क्या हो गया है भाई आपको? सारिम ने रोका। इसका दिमाग खराब हो चुका है, वो चीखे। कुछ नहीं होता, अगर खानदान की रस्म व रिवाज टूट जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वक्त की खुशी को मद्देनजर रखना चाहिए। जी ताया जान, जवान खून है, किसी ट्रक ट्राले के नीचे आ गया तो आप तो बिन बिहाई दुल्हन हो जाएंगी। क्या बकवास है ये? रियाज ने झड़का तो वो मुंह दबा गया। सॉरी, मेरा मतलब है एक ही बेटा है, वो भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तुम मुंह बंद रखो बस अपना। बाप के कहने पर वो चुप हो गया, जबकि सारिम भाई की तरफ देखा। भाई, सबकी अपनी चॉइस है, जमाना
زمانہ اور دور بہت آگے نکل گیا ہے، پھر تو تمہیں بھی پسند کی کرنی چاہیے، جہان کو بھی ساتھ کو بھی۔ ہاں، میں تو پسند کی کروں گا۔ جہان کی زبان تالو سے کہا لگنی تھی۔ ریاض کے گھرنے پر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ تو مار دو تم سب گھر کے بزرگوں کو، وہ کہہ تو رہا ہے رشتہ لے کر جائیں آپ۔ عافیہ بولی تو ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی سب کو کہ عافیہ راضی ہے۔ پلیز ڈیڈ، وہ بہت اچھی ہے، ان کی فیملی بہت اچھی ہے، آپ پلیز سمجھے میری بات کو۔ وہ باپ کے خاموش ہونے پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وقت ایسی لڑکیاں کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ وجدان جھنجھلائے، مجھے پتا ہے وہ میری ہے، وقت نے وثوق سے کہا۔ اس کے خوبرو چہرے میں شدت جذبات سے ہلکی ہلکی لالی سی بھر گئی تھی۔ وجدان صاحب، میرا بیٹے کی خواہش ہے اور میں لازمی جاؤں گی۔ عافیہ نے میرے بیٹے کی خواہش ہے اور میں لازمی جاؤں گی۔ عافیہ نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ وقت باپ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم سب میری طرف سے۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ یس، وقت ہٹائی سے خوش ہوا جبکہ عافیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ضد کا بے پناہ پکا تھا اور جو سوچ لیتا اس سے کیے بنا سکون بھی نہ آتا۔ اب چاچو کے ساتھ بھتیجے کی بھی شادی ممکن۔ نگین ہلکا سا ہنسی، جبکہ سب ہی اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ تم پڑھنے نہیں گئے؟ رحاب نے آنکھیں سکیڑی۔ خالہ، تم مجھے زیادہ درس نہ دو۔ دارم، تم مجھ سے پٹ جاؤ گے۔ ارے رہنے دے، وہ گیم کھیلتا ہوا بولا۔ رحاب پاؤں پٹکتی اندر آ گئی۔ دیکھ لیں آپی، اس کو میری بات نہیں مانتا۔ آپ کے کہنے کے بعد تو شاید ہی کچھ سنے۔ تو مما کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دارم بولا تو سب خاموش ہو گئے۔ میرال نے سب کی باتوں کو اگنور کر کے ماں کی جانب دیکھا۔ آپ لوگوں نے کب جانا ہے؟ ہاں، آج چلیں گے، بس رشتہ فائنل کر کے آئیں گے۔ اس کی ماں مسکرائی۔ مجھے سارن سے شادی نہیں کرنی۔ وہ لڑکا جہان آیا تھا نا، آپ اس کے لیے بات کریں میری۔ میرال کی بات پر رحاب اور اس کی ماں دونوں حیران رہ گئے۔ باولی ہو گئی ہے میرال، وہ جس کا رشتہ لائے تھے اس کا ہی ہوگا۔ اب اس کے بھتیجے کا کہیں شرم و غیرت مر گئی تھی۔ ماں نے اسے اچھا خاصا ڈپٹ دیا اور رحاب کو جی بھر کر ہنسی آئی۔ اتنا فنی ہے آپی کہ آپ کو چاچو کے بجائے بھتیجا پسند آ گیا۔ منہ بند کرو اپنا، مجھے نہیں کرنی سارن سے شادی، بس کہہ دیا اور میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی جبکہ رحاب نے شانے اچکا دیے۔ دارم کے بچے اٹھ جاؤ۔ خالہ، تم بہت بری ہو یار۔ دارم بگڑا۔ وقت کا رشتہ لے کر سب گئے تھے اور اینا کے گھر میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ اتنے بڑے خاندان سے اچانک اینا کا رشتہ آ جانا ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اینا کے والد صرف ایک مزدور تھے اور اس کے پورے خاندان میں بھی دور دور تک کسی لڑکی کی شادی اس طرح نہیں ہو رہی تھی۔ اینا کی بڑی بڑی آنکھوں میں شرم جھجک سی تھی۔ عافیہ اور نگین دونوں نے ہی بس اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اینا تھوڑا مزید جھجک کنفیوز سی ہونے لگی، جبکہ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بہت کیوٹ سی لڑکی بھی خاموش بیٹھی تھی۔ عافیہ نے سیدھا رشتے کی بات کی تو اینا کے والد ہلکا سا مسکرائی، والدہ ہلکا سا مسکرائی۔ جی ضرور، ان کے ابا ذرا باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں، ان سے معلوم کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خیر بہن، اسے بتانے کی چکر میں تم نہ ہی کرو، جب کہ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ تو تمہاری میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، بس رشتہ ہم نے پکا سمجھ لیا ہے، آتے جاتے رہیں گے۔ عافیہ بولی تو اینا نے ان کی جانب دیکھا جبکہ اس کی ماں نے اینا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ سرخی چھا گئی۔ وہ کس طرح بتاتی کہ مجھے محبت کا بخار ان کے بیٹے کا ہے۔ وہ لب دبائے بیٹھی تھی۔ وہ اٹھی اور اس کے سر پر پھر سے ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ میں 2 نوٹ رکھ دیے۔ اینا نے ان 5,000 کے 2 نوٹوں کو دیکھا اور پھر سر جھکا گئی۔ اس کے دل پر ان کا لہجہ بہت زور سے لگا تھا۔
وہ لوگ بنا کچھ کھائے پیے کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور دوسری طرف اینا نے ان کی جانب دیکھا، ماں کی جانب دیکھا جو بھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ اس نے وہ نوٹ ایک طرف رکھ دیے، اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور اپنے آنسوؤں کو ذرا قابو کر کے وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ان لوگوں کے جاتے ہی 20 منٹ بعد وقت کی کالز آنی شروع ہو گئی تھیں، لیکن اینا نے اس کی کالز اٹینڈ نہیں کی۔ وہ شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے، لیکن اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ معلوم نہیں اس نے گھر میں کیا بتایا تھا، وہ تو ان چیزوں سے آگاہ نہیں تھی، لیکن جیسا بھی تھا ان لوگوں کو انداز اس کے لیے حقیر سا تھا۔ بار بار وہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان کے لیے بہت گری ہوئی کوئی شے ہو، اور اس کے دل میں ان کا رویہ چپ سا گیا، یہاں تک کہ وہ شرمندگی کا شکار رہ گئی اپنی ماں کے سامنے بھی۔ معلوم نہیں کیا ہوا ہے، وقت نے دوبارہ کال ملائی مگر رسپانس پھر بھی نہ زیرو تھا۔ اور او ہیرو، کس بے چینی میں ہو؟ اب تو رشتہ بھی چلا گیا تمہارا۔ جہان اور بخت دونوں میٹنگ روم میں تھے اور بخت کی بےتابیاں دیکھ کر وہ بولا تو بخت نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ معلوم نہیں کیا بات کی ہوگی ان لوگوں نے، تھوڑا تو ٹرسٹ کر یار، کیا ہو گیا؟ جب وہ لوگ گئے ہیں تو بات ہی کی ہوگی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمدانی صاحب کے آرڈرز کاؤنٹ کروا لیے؟ ہاں کرا دیے، فی الحال تم یہ چیک کرو، یہ میرے نیو ڈیزائنز ہیں۔ جہان نے اپنا لیپ ٹاپ اس کی جانب کیا تو وقت اسکرین کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میٹنگ کے لیے سب جمع ہو گئے اور وہ سب ہی مصروف ہو گئے، جبکہ دوسری طرف وہ تینوں گھر آ گئی۔ نگین نے دیکھا حنین سیدھا کمرے میں چلی گئی تھی۔ بھابھی خیریت ہے؟ چپ چپ سی ہے حنین، وہ مالا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتی بولی۔ ہاں، اس کی بھی الگ ہی ضد ہے، عافیہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا تو نگین چپ ہو گئی، جبکہ مالا کچن میں آ گئی تھی۔ حنین کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے حنین کی بھی فکر ہوئی تھی، تبھی اس نے حنین کے لیے ملک شیک بنایا اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ حنین یہ لو، میں تمہارے لیے لائی ہوں، مالا نے کہا تو حنین نے ہلکا سا مسکرا کر گلاس پکڑ گئی۔ تھینک یو۔ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ مالا نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اس گھر کے کسی معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ مالا، تم نے کتنا پڑھا ہے؟ حنین کچھ سوچ کر پوچھنے لگی۔ ایف اے، وہ آہستگی سے بتا گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ پڑھنے کے لیے کسی نے پیسے ہی نہیں دیے تھے۔ اچھا، تو تم نے آگے کیوں نہیں پڑھا؟ حنین بولی تو مالا ہلکا سا مسکرائی۔ میں شاید پڑھائی میں نکمی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تمہارا رزلٹ دیکھا تھا میں نے۔ تمہیں گھر والوں نے روکا ہوگا جس طرح مجھے روک رہے ہیں کیا آگے پڑھنے سے؟ مالا نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلائی۔ نہیں یار، ابھی آگے کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ پھر حنین نے اسے ساری بات بتا دی کہ اس کے پروفیسر نے اسے اتنی سی عمر میں کیا آفر دی تھی اور وہ یہ آفر اپیل کرنا چاہتی تھی، اور آج ان کی کال آئی تھی کہ اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو کل آ جائے ورنہ وہ کسی اور کو ہائر کر لیں گے۔ یہ نہیں کہ وہیں ٹک جاؤ۔ خیر، کھانا اچھا بنا لینا آج۔ جہان کے آنے سے پہلے اپنی یہ منحوس شکل لے کر دفع ہو جانا۔ وہ دانت پیس کر بولی تو وہ سر ہلا گئی اور نگین کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ کچن میں آئی تھی کہ عافیہ کی فرمائش آ گئی کہ اس کے لیے حلوہ بنا دیا جائے، اور پھر وہ حلوہ بنانے کھڑی ہو گئی۔ 1 منٹ، ایک لمحہ بھی اپنے لیے اس کے پاس نہیں تھا۔ خیر، اس نے اپنے لیے 1 منٹ نکال کر بھی کیا کر لینا تھا۔ شام ہوئی تو رات کے کھانے کا انتظام شروع ہو گیا۔ وہ کھانا وغیرہ بنانے کے ساتھ ساتھ گھر میں لوٹنے والے مردوں کو بھی فریش جوس دے رہی تھی۔ ماموں اور بک جہان سب ہی صوفوں پر بیٹھے تھے۔ اس نے تینوں ماموں کو پھر بک کو جوس
جوس دیا تو اتنا نہیں گھبرائی، جیسے ہی جہان کو گلاس دیا تو اس کی انگلیوں نے جان بوجھ کر مالا کی انگلیوں کو چھوا تھا۔ وہ اسی طرح اسے تنگ کرتا تھا اور ہر وقت کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ مالا نے جلدی سے ہاتھ دور کرنے چاہے، تبھی جوس ہاتھ سے چھوٹ گیا اور جہان کے پورے کپڑوں پر گر گیا۔ اندھی ہو گئی ہو مالا؟ یہ ریاض ماموں تھے۔ مالا کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا۔ کہہ رہا تھا تمہارا دھیان، سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ سختی سے کہاں رہتا ہے تمہارا دھیان، سارے کپڑے خراب ہو گئے، سختی سے بولے، جبکہ جہان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ میں صاف مالا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ رہنے دو، آئی ول مینج۔ جہان اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اس نے کچن میں دوڑ لگا دی۔ یہ تو شکر تھا کہ یہاں نگین مومانی نہیں تھی، ورنہ تو وہ تھپڑ مارنے سے بھی نہیں رکتی تھی۔ کچن میں آ کر بے ساختہ اسے رونا آنے لگا اور منہ پر ہاتھ رکھے وہ رو دی۔ مالا باجی کیا ہو گیا؟ سکینہ نے اس کو دیکھا تو سوال کیا۔ سکینہ، مجھ سے جوس گر گیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو کیا ہو گیا باجی؟ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں۔ نہیں، مجھے سے نہیں ہونی چاہیے غلطی۔ چھوٹی مومانی کہتی ہے میری غلطیوں کی سزا صرف مار ہے، آپ پریشان نہ ہوں، وہ تو یہاں تھی بھی نہیں، لیکن جہان بھائی تو تھے نا۔ سکینہ خاموش ہو گئی، اب اس کا ڈرنا جائز تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سارا گھر ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ وقت کے رشتے کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، جبکہ وقت کو فکر صرف اینا کی فکر کہ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ لب دبائے کھانا کھانے لگا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم تو اب بھی خوش نہیں ہو؟ ریاض صاحب نے ویسے ہی چھیڑا، ایسی لڑکی کو گھر لا رہا ہے، خوش تو کبھی نہیں رہے گا۔ وجدان بولے تو وقت نے ان کی جانب دیکھا۔ ڈیڈ، ایسی لڑکی نہیں ہے وہ، اس گھر میں میرے نام سے آئے گی اور اس کی عزت اتنی ہی ہے جتنی ہم سب کی۔ ہاں، اپنے ہم تو پالتو، ہاں، آپ نے ہم پلہ تو کبھی نہیں کر سکتے ہم لوگ اسے۔ نگین کی زبان پر بھی کھجلی ہوئی۔ وقت نے مٹھیاں بھیج لی۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ جہان کے ٹوکنے پہ وہ سر جھٹک گئی۔ اینا کو دیکھ کر دل میں عجیب سی حسد تھی ان کی۔ اینا کی خوبصورتی سے وہ جل رہی تھی کہ جہان کے لیے تو انہوں نے پریوں سی لڑکی سوچی تھی اور اینا واقعی کسی پری سے کم نہ تھی۔ وقت نے کھانا چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ کھانا کھاؤ وقت، سارم نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگوں نے جملے کھلا دیے ہیں، تھینک یو۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ جائے گا اب اس کے گھٹنے سے لگنے۔ جوان جہان بہن ہے اس کی، لیکن اس کی حرکتیں دیکھنے لائق ہے۔ وجدان کو شدید غصہ چڑھا۔ یہ کیسا کھانا بنایا ہے؟ اچانک وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے چلائے اور ایک سائیڈ پر کھڑی مالا کا رنگ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا۔ جہان نے مڑ کر اس کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھی اور مسکرا کر آگے چہرہ کر لیا۔ بہت ہی بد مزہ کھانا بنا رکھا ہے، ہاتھوں میں تو کوڑ اتر گیا ہے اس کے۔ نگین بھی بھڑکی، انہیں تو مالا کے نام کا بیڑ تھا کوئی، ٹھیک بنا ہوا ہے کھانا بھائی، تحمل سے ذرا۔ سارم نے کہا تو وہ اتنے غصے میں تھے کہ اٹھ کر چلے گئے اور حنین نے اپنے آنسو اندر اتارے۔ اس کی بات اب بھی نہیں بن پائے گی، کیا ہوگا؟ وہ کیسے جائے گی؟ وہ بھی کھانا چھوڑ کر چلی گئی اور شاید باقی سب کا پیٹ بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے سب اٹھ اٹھ کر چلے گئے۔ البتہ جہان بیٹھا سکون سے کھا رہا تھا۔ مالا نے قدم پیچھے لینا شروع کیے۔ مالا، اس کی پکار پر وہ تھم گئی۔ سامنے آؤ میرے، مجھے کچن میں کام ہے، وہ منمنائی۔ جہان نے گردن گھمائی تو مالا اپنے آنسو پیتی اس کے سامنے آ گئی۔ اتنا بدمزہ کھانا کوئی بناتا ہے؟ وہ سکون سے کھاتے ہوئے بولا۔ کھانا گندا بنا ہے؟ مالا نے اس کی جانب دیکھا۔ کھا کر دیکھو۔ اس نے لقمہ اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، وہ تو کانپ ہی اٹھی تھی اس کی آفر پر۔ جہان نے آنکھیں سکیڑی اور مالا وہاں سے بھاگ گئی۔ جہان نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا اور سنجیدگی سے چہرہ موڑ لیا۔ اسے ایک ہی بات سب سے زیادہ بری لگتی تھی اور وہ تھی
नेग्लिकेशन, कोई इसे इग्नोर कर दे, इसकी बात ना माने, इसकी मर्जी पूरी ना हो तो वो पागल सा होने लगता था और इसकी शख्सियत में तहक्कुम बचपन से ही था। अचानक पानी की आवाज पर इसकी आंख खौफ से खुल गई। इसने जल्दी से देखा, अप्पू सो रहे थे। दिल थाम कर वो कुछ देर सांस भरती रही, फिर अपनी जगह से उठकर खिड़की के दूसरी तरफ झांका। जहान था, स्विमिंग कर रहा था। स्विमिंग पूल और इसके कमरे की खिड़की बिल्कुल आमने सामने ही थी। उसने कुछ देर देखा और फिर अचानक फ्लैश पड़ने पर वो चौंक उठी। इसने इसकी तस्वीर ले ली थी। वो एकदम सीधी हुई। तुम मुझे देख रही हो? वो भी छुप छुप कर। आओ नीचे, अच्छे से दिखाता हूँ, की आवाज में बोला। तो माला को लगा गश खाकर वो गिर जाएगी। वो जल्दी से दूर हो गई। अगर तुम 2 मिनट में नीचे ना आई तो अगले सेकंड अम्मा को वीडियो सेंड कर देनी है। मैंने बुलंद आवाज में पानी का छप्पा के से फाके के साथ वो बोला। तो माला की आंखें भीग गईं। इसने खिड़की घड़ी में वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे। इससे उठने की जरूरत ही क्या थी? माला, इसकी आवाज उभरी, जबकि माला अपनी उंगलियां मोड़ मोड़ कर ही तोड़ देती और फिर चारों नचार इसे नीचे उतरना पड़ा। छोटे छोटे कदम भरती इसकी जानिब आने लगी। जेहान ने पहली बार इसके खुले बाल देखे थे और इसकी नजर महसूस करके माला ने सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। जेहान पूल से बाहर निकल आया। माला इसे शर्मिंदगी के बायस देख ही नहीं पा रही थी, जबकि जेहान के लबों पर मुस्कुराहट थी। इसने इसने बात गाउन पहना और इसके सामने आ गया। छोटी सी माला जैसे इसके वजूद के आगे छुप सी गई। ने कदम पीछे लिए। तुमने जवाब नहीं दिया। वो सीने पे हाथ बांध गया। माला, इसने चुटकी बजाई। कौन सा जवाब? वो ना समझी से पूछने लगी। मैं अपनी बात नहीं दोहराता। तो माला को इसकी बात याद आ गई। रेहान ने जबकि सिगरेट लबों से लगा ली। माला की आंखें और भी फैल गईं। इसके घर में सिगरेट, शराब, ये चीजें हराम थीं। बड़े मामू को हमेशा खानदान की इज्जत का ख्याल रहता था, तभी यहाँ इजाजत न थी। इसके मुस्कुराते होंठों में सिगरेट का शोला देखकर इसकी पेशानी भीग गई। जबकि जेहान को कोई रोक सकता था भला? बिना खौफ व खतर वो सिगरेट का कश भरकर सारा धुआं माला के होंठों पर छोड़ गया, जबकि लबों की तराश में अब भी मुस्कान थी और माला का वजूद पत्ते की तरह कांप उठा। वो पीछे हुआ। जेहान हंस दिया। जवाब? और फिर बेसाख्ता संजीदगी से पूछने लगा। नहीं, नहीं करनी मुझे आपसे शादी। मालूम नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। इसने जवाब अभी दिया ही था कि जेहान ने दोनों हाथों से इसके शानों पर धरे और धक्का दिया। माला सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिरी। छपाके से पानी की आवाज उभरी। रात का पानी की आवाज उभरी। रात का पहर, लाइट्स ऑफ, गहरा पानी जिसमें हल्की हल्की कालस रोशनी ना होने की वजह से महसूस हो रही हो। इस अंधेरे में वो पानी कितना खौफनाक था, इस वक्त माला ही जानती थी। जहान भाई, जहान भाई, माला की चीखें उभरी। अगर स्विमिंग पूल इनके रिहायशी हिस्से से फासले पर ना होता तो इस वक्त सब जमा हो जाते। क्या कहा है तुमने? नहीं करोगी शादी? वो इसे पानी में मचलता देख स्विमिंग पूल के पास बैठ गया। ध्यान भाई, माला मरने के नजदीक थी। माला, मुझे सुनाई नहीं दिया। इसने सिगरेट का एक और कश भरा। माला की जान फना सी हो गई, लेकिन इससे पहले वो इसे थोड़े से पानी में भी डूब कर मर जाती। जहान ने इसकी जानिब अपनी टांग बढ़ा दी, जैसे वो दोनों हाथों से थाम कर जल्दी से दीवार पकड़ गई और इस स्याह पानी से बच्चों की तरह रोती हुई निकली कि यहाँ तक कि खौफ से इसी खौफ से कि पानी ही इसे खा जाएगा, इसके हाथ जख्मी हो गए थे। जहान का बाथरूम भी पकड़ा हुआ था। इसे
जहान अलबत्ता सुकून से ये सब देख रहा था और अचानक सिगरेट को लबों में ही छोड़े इसने माला की गर्दन में अपना भारी हाथ रखा और सख्ती से इसकी गर्दन जकड़ ली। तुम्हारे पास इतनी जबान नहीं होनी चाहिए माला कि तुम जहान आलम के मुंह पर इसे इनकार करो। और इनकार इनकार तो मैंने कभी अपने माँ बाप के मुंह से नहीं सुना। ये तन्हाई थी। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा मेरी किसी बात से इनकार करोगी तो तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें मार दूंगा। याद रखना माला। इसने इसकी गर्दन झटकी। माला बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। जिहान ने इसका सर अपने सीने से लगा लिया, यहाँ तक कि इसके गीले बालों में आहिस्तगी से हाथ फेरने लगा। माला, माँ ठीक कहती है, तुम्हारी गलती की सजा भयानक है। तुम्हें इस पानी ने परेशान किया है। मैं इस पानी को परेशान कर दूंगा। डोंट वरी। ऐसे ना रो। वो बोल रहा था। माला को इसके सीने से उठती खुशबू महसूस कुन लग रही थी, लेकिन इस वक्त वो इतनी खौफजदा थी कि कोई अजनबी भी होता तो इसका साथ इसकी तकबीयत देता है। रिलैक्स। आंखें बंद किए वो रो ही जा रही थी। रिहान ने इसका सफेद भीगा चेहरा पहली बार बड़े नजदीक से देखा था। रोने के बायस इसके चेहरे में हल्की हल्की सुर्खी थी। वो रोती हुई शायद दुनिया की हसीन तरीन औरत लग रही थी, जो सिर्फ इसके रहमो करम पर थी। आज तक इसे माला हसीन खूबसूरत नहीं लगी थी। इसने बस इसे तंग किया। इसके घबराने और परेशान हो जाने पे वो मजा उठाया और बात खत्म। अचानक माला ने अपनी सुर्ख आंखें खोली। जहान का चेहरा इसके बहुत नजदीक था। माला ने इससे दूर होना चाहा और जहान इससे खुद ही आजाद कर गया। माला कांपते हुए भागी और गीले होने के बायस जमीन बोस हो गई। जहान ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। वो और भी रो पड़ी और फिर उठकर भागी कि फिर से टकरा गई। जहान लम भीज गया। माला पिलर को ही पकड़कर फूट फूट कर रो दी, जबकि जहान ने नफी में सर हिलाया और इसकी सिमट पड़ने लगा। इसका हाथ पकड़ा और इसके पोषण के सामने छोड़ दिया। वो लोग कभी इसके पोषण या इसके बाप के कमरे तक नहीं आए थे और न ही आना पसंद करते थे। वो चला गया और माला अब तक इस खौफ व हिरास की कैद में थी। हनीन इसके सामने ही खड़ी थी। क्या हुआ? 12 क्यों बज रहे हैं मुंह पर? जिहान ने सवालिया निगाहों से इसे देखा और हनीन ने आहिस्ता आहिस्ता सब बता दिया। जिहान के हाथ रुक गए। अपॉर्चुनिटी है भाई, डैड नहीं मान रहे। हनीन का लहजा भरा गया। तुम्हारे डैड को सिर्फ अपनी सुनानी आती है। किसी दिन उन्होंने किसी से इसकी ख्वाहिश पूछी है भला? एनीवेज, तुम तैयार हो जाओ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। और ताया जान को बताना कि तुम्हारे समर कैंप चल रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है मेरा कोई समर कैंप नहीं। अब वो बेचारगी से बोली। तो ताया जान की चम्मच हर बात इनके कान में उतारना जरूरी है? वो इसे घूर कर बोला तो अनिल मुंह बसूर गई। कह दो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने जा रही हूँ, और इन्हें पता चल गया तो छोड़ देना, इसने सहूलियत से कहा। सोच हुई और बख्त भाई, इसे बख्त की भी फिक्र हुई। मैं बता दूंगा इसे। वो इसका गाल थपथपा गया। माला ने ठीक कहा था, ये आदमी ही इसका मसला हल कर सकता था। वो खुशी खुशी नीचे आई और अपनी माँ को उल्टी सीधी कहानी सुनाने लगी। उन्होंने शक्की नजरों से इसे देखा। सच्ची? जहान भाई से पूछ ले, समर कैंप है, हनीन ने कहा। जहान ने अलबत्ता सर नहीं उठाया था अपने मोबाइल पर से, और वो वजदान और रियाज को मौका ही ना मिले इसकी बात पे गौर करते, क्योंकि वो दोनों ही शहर से बाहर जा रहे थे। आज सारन की बात पक्की हो रही है। आप लोग जा रहे हैं? अफिया भी भूल गई थी ये मामला, तभी सारिम का जिक्र किया। तुम कर लो, हम इंशाल्लाह आके मिल लेंगे। उजलत में सब निकल गए और पीछे वो अपने ख्वाबों को पूरा करने निकल गई। इस वक्त प्रोफेसर के रूम में वो छोटी सी लड़की काफी एक्साइटेड सी खड़ी थी। ये इसकी जिंदगी का वो लम्हा था जो शायद इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। यहाँ जान भाई ने इसे छोड़ने से पहले ही इसे कह दिया था कि तुम खुद नहीं जाओगी घर, मैं या वक्त लेकर जाएंगे। और वो अंदर आ गई। मुझे बहुत खुशी है तुम अपनी जिंदगी में ये एक
एक्सपीरियंस करना चाहा और तुम्हें ये मौका मिला जिसे तुमने अवेल किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। वो मुस्कुराए तो इसके चेहरे पर हल्की सी लाली बिखर गई। और ये आपकी ही तवज्जो है, अगर आप ना होते तो शायद मैं इस तारीफ के काबिल भी ना होती। हनीन बोली तो वो हंस दिया। अरे बच्चा, तुम बहुत एबल हो, बहुत आगे जाओगी इंशाल्लाह। अच्छा खैर, ये 3 महीने का पेंस है। 3 महीने बाद मेरे प्रोफेसर भी आ जाएंगे और मैं तुम्हारी छोटी सी उम्र में तुम्हारे एक्सपीरियंस लेटर भी दे दूंगा। इसके बाद अपनी स्टडी पर फोकस करना। जी सर, इंशाल्लाह। वो प्लीज हाथ में लिए वो बिल्स हाथ में लेगी। किसी भी चीज़ में मुश्किल या परेशानी हो, आपने मुझसे डिस्कस करना है। वो इसके अलावा मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बट बहुत बदकिस्मती से स्टूडेंट्स नहीं। वो जिस मासूमियत से बोले थे, हनीन के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई, क्योंकि इनके लिए ये अनोखी बात है कि इनकी हम एज इन्हें पढ़ाने जा रही है। वैसे तुम खुद तवज्जो दोगी, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखना। आपने अपना भी ख्याल रखना है। कोई बदतमीजी करे मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो अपनी जगह से उठे, जबकि वो सर हिला गई। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वो इसे लिए बाहर आ गए। ये ख्वाब सा लग रहा था हनीन को, बस जिसे पाना इतना आसान न था। वो जानती थी वो घर में झूठ बोल चुकी है, लेकिन झूठ बोलकर वो अपनी जिंदगी जी रही थी, इन खानदानी रस्मों से निकलकर। वजदान ने तो दोबारा मौजू ही नहीं किया, ऐसे जैसे इसकी बात, इसकी ख्वाहिश की कोई वैल्यू ही नहीं थी। और जहान ने इसे पर लगा दिए जिस पर उड़ना अब इसका काम था। सर इसे सब समझा रहे थे कि एजुकेशन के बायस लड़के और लड़कियां इसे देख रहे थे। मुड़ मुड़ कर वो कुछ कंफ्यूज भी थी, लेकिन हिम्मत मुजतमा की कि वो सिर्फ 3 माह के लिए ही यहाँ थी। ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, प्रोफेसर ने बताया, तो इसके वजूद पर नर्वसनेस के बायस कपकपी सी तारी हो गई। वो अंदर दाखिल हुए तो सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए। हनीन इन सबको एक्साइटेड होकर देख रही थी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके। तो ये मेरी स्टूडेंट है, बहुत काबिल, बहुत ज़हीन, और एमडीकेट में फ़र्स्ट पोजीशन ली है इन्होंने। इन्होंने मेरे कहने पर आप लोगों को और हमें टाइम दिया है। आई थिंक अब लोगों की अच्छी बन जाए आई थिंक अब आप लोगों की अच्छी बन जाए और जल्दी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि आप सबकी एज एक ही है और मुझे आप सबसे इनके साथ को कोऑपरेशन की उम्मीद है। वो मुस्कुरा कर बोले, सॉरी सर, हमें बच्चों से नहीं पढ़ना। शुमाइल की आवाज़ पर उन्होंने गहरा सांस भरा। हनीन ने इसकी जानिब देखा जो इसे ही देख रहा था। चेहरे पर मज़ाहिया सा तासुर था, लेकिन देखने में वो लड़का बेहद खूबसूरत था। शुमाइल खान, तुम 3 साल से फेल हो रहे हो, याद है तुम्हें? इनकी बात पर सारी क्लास एकदम हंस दी और शायद शुमाइल भी मुस्कुराया। सर, फीस देकर 3 साल से बैठा हूँ, और अगर मेरे वालिद साहब आपको खर्चा पानी ना दें तो आपका ये इदारा चलेगा कैसे? तो मेरे जाने की दुआ ना करें। हनीन ने हैरान नज़रों से इस लड़के को देखने लगी, जिसने एक लम्हे में सर का मुंह उतार दिया। इसकी आंखों में नमी आ गई। कितना बदतहजीब इंसान था, अपने ही प्रोफेसर के साथ इतनी बदतमीजी। एनीवेज, आप सब अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और शुमाइल, तुम क्लास के बाद मेरे ऑफिस आना ज़रा। वो कहकर चले गए, जबकि शुमाइल ने सर झटका। मैं बच्चों से नहीं पढ़ूंगा। इसने एक जंप लगाई और नीचे उतर गया। तो दोस्तों, ये थी पहली एपिसोड किताबों वाला इश्क नॉवल बाय तानिया ताहिर की। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसकी सेकंड एपिसोड भी दे दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और आप लोग मेरे नॉवल सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और प्लीज़ आप लोग अपनी राय का इजहार किया कीजिए कमेंट बॉक्स में आकर। कोई छोटा सा मैसेज आपको अच्छा लग रहा है या कोई भी कुछ भी कहना है तो प्लीज़ आप लोग कुछ भी कहिए, पर कहिए।
ضرور کہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.